My name is Sangeeta and I'm working in Ayush department and I'm connected with PSS movement since last 12 years. So I came in meditation and I more connected with the animal kingdom, more with the mineral kingdom, more connected with the plant kingdom. So in the meditation and as a vegetarian, I feel that as a doctor also, that the vegetarian is very, very important part for to save the Mother Earth. And we have to be more compassionate toward the animals also. So before going to our main hero, a living legend in the sports, so I want to tell about the some specific events of Sushil Kumarji, a sports legend of the world who has proved that the eating non-veg is not essential for an athlete, as he is a pure vegetarian. Sushil Kumar changed the paradigm for wrestling in India in more ways than one. With almost every first in the sport associated with his name, there is absolutely no argument about the fact that the Sushil Kumar is the true trailblazer and the flag bearer of the Indian professional freestyle wrestling at the international podium. He was one of the first players to take up the wrestling as a profession and made it look cool with his dedication, single mindedness, hard work, and success. With several outstanding achievements across the globe against his name, the first Indian to win consecutive individual Olympic medals and the first Indian to win consecutive the gold medals at the World Championships by becoming the world champion twice. Sushil is without doubt one of the India's best ever freestyle wrestlers and a great role model who has inspired many youngsters to take up the sports of wrestling in India. And 2 days back, when I was talking with Sushilji, so I felt that he has a very emotional and compassionate heart because he is very, very compassionate towards the animals because he is a pure vegetarian and along with the strong muscle power because he is a freestyle wrestler and along with he has a very long list of achievements rewards. So the two main Olympic games, the bronze medal in Beijing Olympic in 2008 and the silver medal in London Olympic in 2012, and along with the awards he got the Padam Shri award, the highest civilian award by the government of India in 2011, Rajiv Gandhi Khel Ratan Award in 2009, and Arjun Award in 2005, and the Rajiv Gandhi Sports State Award in 2001. So I welcome Sushil ji. Please, over to you now. नमस्ते मैम, आप सभी को नमस्कार मेरा। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं। मैं मध्यम परिवार से आता हूं। मेरे जो पिताजी हैं वो ड्राइवर होते थे, मगर अब मालिक की दया से सब कुछ ठीक ठाक है। मगर मैं अपने बारे में भी बताऊंगा और अपने गुरु के बारे में भी बताऊंगा और किस तरीके से मैंने अपनी जर्नी है जो वो की है और किस तरीके से विश्वास मैंने रखा है, इसी कारण मैं अच्छा कर पाया। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कुश्ती से जाना चाहता हूँ और मेरा गांव है दिल्ली में और मैं इंडिया के लिए कुश्ती खेलता हूँ। और मैं छोटा सा 14 साल का था जब मैं गुरुजी के सानिध्य में आ गया था, गुरुजी के पास में आ गया था। और जब से अब तक मैं कुश्ती सीख रहा हूँ उनसे, हर जीने का एक सिस्टम भी सीख रहा हूँ उनसे। मेरा मानना ये है कि जब आपके बड़ों का आशीर्वाद आपके ऊपर है तो आप सब कुछ अच्छा कर पाओगे। और आज जिस तरीके से संगीता मैम ने जब मुझे कहा कि आपको वेजिटेरियन के बारे में बोलना है और एक पहलवान वेजिटेरियन रह सकता है, ये बड़े ताज्जुब की बात है। तो मैं संगीता मैम को, जो लोग मुझे सुन भी रहे हैं, मैं उनसे सबसे कहना चाहूँगा कि वेजिटेरियन में बहुत ताकत होती है। और उसका सीधा सीधा आप उदाहरण मेरा भी दे सकते हैं कि
मुझे टेक्निकल पहलवानों में नहीं गिना जाता, मुझे ताकतवर पहलवानों में गिना जाता है। और उसी कारण मैंने अपने देश के लिए हर एक वो मेडल जीता है। वर्ल्ड चैंपियन में बना हूँ, कॉमनवेल्थ चैंपियन में बना हूँ, ओलंपिक में 2 मेडल में पहला भारतीय हूँ, जो इंडिविजुअल में मेरे 2 मेडल है ओलंपिक के। तो मैं वेजिटेरियन होकर ये सब चीजें जीती है। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे सबसे कहना चाहूंगा कि आप वेजिटेरियन रहकर भी अच्छा कर सकते हैं। और मैं एक छोटी सी और एक घटना आपको बताना चाहूंगा। मुझे ओलंपिक से पहले चोट लगी थी कंधे में, और डॉक्टरों ने भी ये बोल दिया था कि ओलंपिक आप नहीं खेल पाओगे। तो मैं एक विश्वास की बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि विश्वास और ध्यान, मेडिटेशन, ये एक कम्बिनेशन है। आपने अपने मालिक में विश्वास कर रख लिया, अपने भगवान में विश्वास रख के और मेडिटेशन आप करते हो, तो आपका जो लक्ष्य है उसे आप पक्का पकड़ पाओगे। मेरा लक्ष्य यही था कि मुझे ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतना है। और मैंने चोट से उभर कर, चोट में मैंने मेहनत कम की, मैंने मेडिटेशन बहुत किया, और अपना जो ध्यान है वो पूरा एक मेडल पर लगा के रखा है कि मालिक मुझे ये मेडल चाहिए है। और उसके लिए मैं ध्यान लगाता रहा, और उस ध्यान से मुझे इतना बल मिला, इतनी मेरी मतलब ध्यान जो है इतना लगाया मैंने, कि मेरा जब मैं कुश्ती लड़ रहा था तो मुझे उस चीज का पता महसूस हो रहा था कि हाँ, ये जो मैंने ध्यान लगाया, मेडिटेशन किया, उसका परिणाम है कि मैं ये अच्छा रिजल्ट दे पा रहा हूँ। तो मेडिटेशन भी आप जो लोग जरूर करें, क्योंकि मेडिटेशन में बहुत ताकत है। मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन में मैं अपनी जो दिनचर्या है, मैं उसके बारे में आपको बताऊं कि सुबह हम जब उठते हैं तो जो है अंकुरित चने हैं, मुनक्का है, मूंगफली है, सोयाबीन है। तो इस तरीके की चीजें हम सुबह ट्रेनिंग से पहले, बादाम है वो खा के जब ट्रेनिंग करते हैं। और फिर उसके बाद पूरा ट्रेनिंग होने के बाद, पूरी ट्रेनिंग होने के बाद हम जो हमारे जो कोचिज हैं वो हमें जो चीज हमें बताते हैं कि आप बादाम पीजिए रगड़ कर, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मेरे ख्याल से हमारे ही देश में बादाम रगड़ के पिए जाते हैं। वो दूध जैसे होते हैं, जो एक बार पी लेता है तो उसका स्वाद भी बहुत जबरदस्त होता है। तो बादाम हमें गुरुजी पिलाते हैं, और फिर दूध, मक्खन, ये खाता हूँ मैं। और मैं मानता हूँ जब मेरी एक दिनचर्या इस तरीके की रहती है, और तो मुझे नॉन वेज की तरफ जाने की जरूरत कभी महसूस ही नहीं हुई। और मैं तो आप के माध्यम से और हर जगह जो भी प्लेटफॉर्म मेरे को मिलता है बोलने के लिए, तो मैं सबको यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वेजिटेरियन रहकर भी ताकतवर बन सकते हैं। और वेजिटेरियन का एक फायदा और मैं आपको बताता हूँ कि वो क्विकली डिसीजन ले पाता है। आप क्विकली डिसीजन मेकर बन जाते हो जब आप वेजिटेरियन हो। तो बहुत से फायदे वेजिटेरियन के हैं, और बहुत सी चीजें हैं वेजिटेरियन में भी कि आपके प्रोटीन को बढ़ा सकती हैं। सब्जियां इतनी हैं, मौसमी आप खा सकते हैं फल में। तो मैं मानता हूं कि वेजिटेरियन में बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि आपको ताकत देती है। मैं वेजिटेरियन हूँ, ये बार बार मैं हर प्लेटफॉर्म को बोलता हूँ। पेटा का मैं ब्रांड एम्बेसडर भी रहा हूँ, और मुझे कई बार ऐसे भी ऐड लोगों ने देने की कोशिश की कि जो मुझे अच्छे नहीं लगे, और मैंने अपने जो गुरुजी हैं मैं उनसे ही पूछ के सारी चीजें करता हूँ, क्योंकि बड़ों का जब आशीर्वाद, जब गुरुओं का आशीर्वाद आपके सिर पे है तो आप और अच्छा कर पाते हो। तो एक लिकर का ऐड मेरे को मिला कि आप ये शराब का ऐड कीजिए। तो ऐड मैंने बहुत किए हैं, और मैंने एकदम से मना कर दिया कि नहीं। और हमारी जिम्मेवारी एक और भी हो गई है अब कि हमें लोगों को ठीक रास्ता भी दिखाना है। मैं स्कूलों में जाता हूँ, कॉलेजों में जाता हूँ, तो मैं सबको यही एक चीज कहता हूँ कि बुरी चीजों से आप बच के अच्छी चीजों की तरफ आप जाएंगे तो आप पक्का कामयाब होंगे, जो आपका लक्ष्य है उसे पाओगे। तो मैंने जो है लिकर का ऐड नहीं किया, उसमें बड़ा अमाउंट भी था। मैंने इसी कारण नहीं किया कि मुझे अपने छोटे भाई बहनों को एक अच्छा मैसेज देना है कि नहीं, हमें बुराइयों से दूर रहकर अच्छी चीजों को पकड़ के चलना है। हमें सात्विक तरीके से रहना है, वैष्णव रहना है। तो आपको इस तरीके से रहकर आप कोई चीज करोगे तो मजा आता है। और मुझे बहुत आनंद आता है अब जब कोई लोग मेरे को ये बोलते हैं कि सुशील भाई आपने बड़ा अच्छा किया कि शराब का ऐड नहीं किया। तो मुझे बड़ी खुशी होती है उस बात की कि हाँ, जो मेरे गुरु ने मुझे कहा और जो मेरा मन ने ये कहा कि मुझे शराब का ऐड नहीं करना, तो लोगों ने भी अप्रिशिएट किया मेरे को। मैं उन सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना भी चाहूंगा कि आप इन चीजों से दूर रहकर अच्छी चीजों को पकड़ कर आप चलेंगे तो
जीवन की जीने की का मजा ही अलग आएगा आपको। और मैं पहलवान हूँ, खिलाड़ी हूँ, तो बोलने का काम मेरा ज़्यादा नहीं रहता है, मगर संगीता मैम ने जब मुझे कहा और नेहरा साहब ने मेरे को कहा कि नहीं आपको थोड़ा सा बोलना है, तो मैम संगीता मैम को से कहा कि हाँ मैं जितना भी बोल पाऊंगा मैम मैं बोलूँगा। और अपना जो थोड़ा सा अनुभव मेरा वेजिटेरियन का है और जो मैं ध्यान लगाता हूँ उसका है, तो वो मैं जरूर लोगों के सामने शेयर करूँगा और लोगों को भी बताऊँगा कि इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। तो बहुत फ़ायदे मेडिटेशन की और वेजिटेरियन रहकर आप कर सकते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संगीता मैम का, आप सर का देना चाहूँगा कि मुझे भी आप लोगों का आशीर्वाद सब लोगों का मिल रहा है कि एक ब्राउन्स मेडल मेरा हो गया है, सिल्वर हो गया है, तो एक मेडल बचा हुआ है, तो उसके लिए मुझे आप सबका भी आशीर्वाद चाहिए कि मैं इसी रास्ते पे चलता हुआ और देश की सेवा करता रहूं कुश्ती के माध्यम से। और धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबका। नमस्ते। Thank you, Sushil ji. Wonderful. You explain your diet and your respect towards your guru, towards your father, and you explained about the diet. And first of all, I want that you talk with my spiritual guru Patri ji. Patri sir, please आप सुशील जी से बात करिए। स्वामी जी हम सब चरण स्पर्श स्वामी जी। स्वामी जी हम सब तो बस ऐसे जंग आश्चर्यचकित हो गए आपको देखकर, ऐसे पहलवान हमारे सामने और वेजिटेरियन पहलवान। मुझे आशीर्वाद मिल गया आप लोगों का और ऊर्जा, जब अच्छे आदमियों का आशीर्वाद मिलता है और अच्छे आदमियों का सानिध्य मिलता है तो मेरे गुरुजी कहते हैं कि आपका जो है ना एक और बल मिलता है। तो मुझे भी आज वो बल महसूस हो रहा है आप लोगों का आशीर्वाद में। सुशील जी, मैंने जो मेडिटेशन सीखा है वो पत्री सर से सीखा है। जो वेजिटेरियनिज्म की जो खूबियां सीखी हैं और जो लाइफ में कॉमन सेंस सीखा है ना, कि कॉमन सेंस ये है कि एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए। वी डू नॉट किल एनिमल्स, वी हैव द कंपैशनेट हार्ट टुवर्ड्स द एनिमल बीइंग्स, टुवर्ड्स द एनिमल किंगडम। ये जितनी भी बातें मैंने सीखी हैं सब पत्री सर से सीखी। और पत्री सर मेरे स्पिरिचुअल लेजेंड हैं, मेरी एक पावर है पत्री सर। मतलब 24 आवर्स मेरे खून में पत्री सर का बातें रहती हैं, इतना इम्पोर्टेंट है। मैम मैं इसीलिए मेरे आपके विचार भी मिलते हैं कि आप भी गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हो और मैं ये मानता हूँ जो गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है ना वो पक्का जो उसका टारगेट है जो आप उसका लक्ष्य है उसको पक्का, थोड़ा सा लेट हो सकते हैं, हर चीज में थोड़ा सा लेट हो सकते हैं मगर उसको उसका लक्ष्य जरूर मिलेगा। ये मेरा भी अनुभव है। तो आप भी बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको भी अच्छे गुरु मिले हैं और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे अच्छे माता पिता मिले हैं, अच्छे गुरु मेरे को मिले हैं कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं देश की सेवा कर सकूं। पत्री सर आपको बार बार हमारे पास आना है बाबा स्वामी जी। जी सर। अब हमारे एनुअल फंक्शंस में आना है दिसंबर में ये साल। पक्का सर। बड़ों का जो आदेश होगा वो हमेशा मैं मानता हूँ। आप नहीं आएंगे तो हम गुस्सा करेंगे आपके ऊपर। नहीं, मैं गुस्से का मौका दूंगा नहीं सर, देता नहीं गुस्से का मौका। मेरे बड़े मेरे को बहुत प्यार करते हैं। अब दिसंबर में हैदराबाद को आना है स्वामी जी। पक्का सर, चरण स्पर्श सर। जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। जी सर। मैं पत्री सर एक बात कहना चाह रही थी सुशील जी से, क्योंकि जैसे ये मैसेज देते हैं एज ए एम्बेसडर मैसेज देते हैं, तो अंदर से एक बात आ रही है कि आप भी एक वेजिटेरियनिज्म के लिए एक संदेश दीजिए। एक लिखकर हम संदेश उसको पब्लिश करेंगे कि एक एथलीट के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए वेजिटेरियनिज्म कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपके जीवन में वेजिटेरियनिज्म बहुत महत्व रखता है। और ये महत्व सबको पता लगना चाहिए कि एक स्पोर्ट्स पर्सन हो या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, उसको एनिमल की डाइट की कोई जरूरत नहीं होती। और वो वेजिटेरियन में जैसे आप डाइट प्लान बता रहे थे कि बादाम है, बादाम शेक है, मिल्क है, दालें हैं, ग्रीन वेजिटेबल, कितनी सारी चीजें हैं जिनको खाकर हम अपनी
रेसलिंग में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, एथलीट बन सकते हैं। आप ताकतवर बन सकते हो मैम, इतनी चीजें हैं वेजिटेरियन में, आपको जरूरत ही नहीं है, आपको नॉनवेज खाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि लोगों को क्या भ्रम है इस चीज का, मगर मैं उनसे सबसे कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी, आप वेजिटेरियन में बहुत चीजें हैं ऐसी। आप हमारे पीएसएसएम के एम्बेसडर बनिए बाबा, ब्रांड एम्बेसडर प्लीज। आशीर्वाद सर आपका। मैडम का जो आपने आदेश कर दिया वो फाइनल है, बस अब बोल दिया मैंने। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सर। जो इस तरीके के सामाजिक चीजें होती है ना सर, मैं उसमें जो मेरे गुरुजी खुद मेरे को भेजते हैं कि जाओ वहाँ पे जाओ और मैसेज दो, और आप को एक मालिक ने मौका दिया है तो आपको हर जगह पहुंचना चाहिए। तो आप लोगों का आशीर्वाद है तो मैं आप उस चीज को छोड़ दो, जो आपने बोल दिया वो फाइनल है। हम पूरा भारत देश में हम विस्तार रूप से हम काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं स्वामी जी। आपको बार बार हमारे बड़े बड़े मीटिंग्स होते रहते हैं, आपको आना ही है पक्का पक्का सर, हमारे एम्बेसडर बनकर। पक्का पक्का सर, पक्का सर। आशीर्वाद चाहिए आपको, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए बड़ों का। आशीर्वाद है स्वामी जी, आप हमारी रिक्वेस्ट है हमारी। नहीं, आप आदेश करो, रिक्वेस्ट नहीं। आप बड़े हो, गुरु हो, तो आप आदेश करोगे, आपको बस रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली वंडरफुल।